जी आज ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CISF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ CEO ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ अपने अपने विचार के साथ ही ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ आज तो ही वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली उन पैसेंजर्स वास्ते है ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਗੇਜ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਗੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने बकायदा मनाली धर्मशाला तक भी पहुंचाया है ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਸਟ ਵਿੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨਸ की ਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਿਆਲ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜਟ ਹੋਟਲ ਟਾਇਰ 2 ਟਾਇਰ 3 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਰੇट्स वगैरह ने वो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी ऑथराइज रेट्स ने ਜਿਹੜੇ नोटिफाइड रेट्स ने उसी तो ही वो टैक्सी रेट्स किए जाएं कोई भी इसके अंदर कोई मुफ्तखोरी या फिर कोई प्राइस हाइकिंग ना होवे। इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇंजर्स ਨੂੰ ताकि कोई भी इस तरह की दिक्कत पेश ना आए कि इस संकट की घड़ी का फायदा उठाते हुए कोई इस तरह की कोई इलीगल हरकत
कहीं भी सामने पेश आया, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर्स ਵੱਲੋਂ भी पूरा विश्वास दिवाया गया हैगा कि ਜਿਹੜੇ भी गवर्नमेंट ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ एक कोशिश ये भी की है कि किसी को अगर कोई मेडिसिन वगैरह की भी कोई अगर लोड हैगी तो जरूर पैसेंजर वालों जरूर हमें बताया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि किसी को कोई अर्जेंसी दे विच कोई मेडिसिन वगैरह की लोड नहीं कि ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट उन्होंने जरूर असी पूरी कर सकिए। सो दीज आर फ्यू थिंग्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇंजर्स अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगियां। सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के विच जिहड़ा एक फीयर फैक्टर बन गया हैगा कि मेरी फ्लाइट जानी है कि नहीं जानी है, कि कैंसिल हो गई तो आगे किवें रिशेड्यूलिंग कराई जाएगी, ये पूरी जानकारी आज तो ही असी सोशल मीडिया राही तुहाडे राही ते नाल ही प्रैस रिलीज राही सारे पैसेंजर्स दे नाल सांझी करांगे ते नाल आम पब्लिक राही भी सांझी करांगे, ताकि ये जिहड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर बन गया है पिछले 2 दिनों तो इसमें रोकया जा सके। कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग को लेकर क्या बातचीत हुई, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर है जो कह रहे हैं कि रिफंड में इशू आ रहा है, इंस्टेंट रिफंड नहीं हो रहा है, कई लोगों ने एजेंट के थ्रू कराया था तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर कोई डिस्कशन? यहाँ पे एक नंबर मैंने वही अभी आपसे शेयर किया कि एक नंबर स्पेसिफिकली इंडिगो अथॉरिटीज वालों जारी किया जा रहा हैगा, जिस नंबर पे वो जानकारी वो ले सकते हैं। कैंसिलेशन यू कैन टॉक टू इन हिंदी ओनली ना। अच्छा, इस संबंध में इंडिगो अथॉरिटीज की तरफ से एक नंबर जारी किया जा रहा है जिसमें स्पेसिफिकली कैंसिलेशन और उनके आगे अगर रीशेड्यूलिंग करनी है तो रीशेड्यूलिंग के रेट्स वगैरह क्या होंगे, किस प्रणाली नाल वो कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो उनकी ऐप है, दे आर क्लेमिंग कि उनकी ऐप से बहुत स्मूथ तरीके राही बहुत आसान तरीके से वो सारा रिक्लेम उनको मिल जाएगा उनके खुद के खाते में। अगर एजेंट के थ्रू है तो उन एजेंट्स के साथ भी डायरेक्ट राब्ता इंडिगो अथॉरिटीज वालों कायम किया गया है। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो इस कंट्रोल रूम नंबर जो हम आज रिलीज कर रहे हैं उसके थ्रू आपके राही जो भी पैसेंजर्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैंडलिंग देम ईच सर्विस रिक्वेस्ट एट इंडिविजुअल बेसिस। मैडम, इंडिगो से ये पूछा गया है कि ये सारे मेजर्स जो लिए हैं इतना लेट क्यों हुआ ये सारा कुछ, क्योंकि यात्री तो 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, इंडिगो के अधिकारी तो वहाँ काउंटर पे बात तक नहीं करते हैं ढंग से। 4 तारीख को यहाँ मेजर इशू आया है और वही 3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे 4 तारीख को दे स्टिल थॉट, जो मैं अब ये कह सकती हूँ कि ये कियोस्क जो बना है ऑब्वियसली सबको ही पता है कि इसका कारण क्या रहा। 4 तारीख तक इनके पास फ्लाइट रोस्टर वगैरह दे विच जो भी इनके पास चाहे फ्लाइट पायलट की रोस्टरिंग होए चाहे ग्राउंड स्टाफ की रोस्टरिंग होए, दे हैड सम प्रोविजनिंग्स, बट बिकॉज ऑफ आई वुड से आई विल नॉट गेट इनटू इट कि इनकी मिसमैनेजमेंट था या फिर रोस्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। वी आर नाउ ट्राइंग टू सॉल्व द आफ्टरमैथ और एग्जीक्यूशन में या इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से नहीं आगे लोगों को कन्वे की गई है। 5 तारीख में भी कुछ कैंसिलेशंस हुई जो लोगों को नहीं पता चली थी। यहाँ पे एन मौके पे लोगों को पता चला कि ये शायद फ्लाइट नहीं जाएगी, जिससे ज्यादा क्योस हुआ। कल के संबंध में जेकर देखिए तो यहाँ पे 10 फ्लाइट कैंसिल की गई थी इंडिगो की और 10 घंटे पहले ही उन सारे पैसेंजर्स को ये मैसेज राही फोन कॉल राही 10 दिता गया सीगा कि जी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, अब आप रीशेड्यूलिंग करा सकते हैं या फिर आप कैंसिलेशन के लिए रिफंड ले सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जिनकी भी कैंसिलेशन होनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे ये सिर्फ चंडीगढ़ का मसला नहीं, पूरे भारत में ही अब ये सारी इस तरह की कैंसिलेशंस होंगी। इसको नॉर्मलसी आते आते कि लोग उस लेवल के ट्रैवल को दोबारा इंडिगो के साथ पहुंच सकें, इसको अभी शायद महीना 2 महीने का समय लगेगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जिनके भी कैंसिलेशंस हो उनको ये भरोसा रहे कि उनकी कैंसिलेशंस उनका पैसा टाइमली वापस आ जाएगा। जिसका भी बैगेज कहीं पे भी कहीं गुम किया है या फिर अभी नहीं मिला है, उनका बैगेज टाइमली उनके पास आ जाएगा
और आगे किसी को अगर कहीं भी अर्जेंसी में ट्रैवल करना हो तो उनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। कोई ऐसी बात इंडिगो से हुई हो, क्योंकि जो लोग हैं जो यहाँ पे कैंसिलेशन, जिनको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने हजारों रुपए खर्चे हैं टैक्सीज के ऊपर, जो है होटल्स के ऊपर, कोई उनको रिफंड करने के लिए इंडिगो से बात हुई हो? कुछ होटल यहाँ पे इंडिगो ने खुद अपने थ्रू जिन लोगों को स्टे ओवर कराया था उसका पे आउट इंडिगो ने खुद ही किया है। द पैसेंजर्स जिनकी फ्लाइट अगर काफी डिले हो गई, 10 घंटे 12 घंटे ओवर द नाइट डिले हुई है, उनका रहने का इंतजाम, रात का स्टे आउट इंडिगो अथॉरिटीज वालों ही होटल में किया गया है और उसका पूरा पे आउट भी इंडिगो ने किया है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई इस तरह से आज भी कोई किसी का कोई कंसर्न है कि उन्होंने खुद कहीं पे आउट किया या बाहर से ही कहीं उनको जाने को एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टैक्सीज के ऊपर ही 10-10, 15-15 हजार खर्च किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसी वजह से हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन रही कि वो फ्लाइट जानी है, कैंसिलेशन होनी है। They should be held responsible for that. कंपनसेट करेगा नहीं करेगा ये अगर इंडिगो? आउट ऑफ एयरपोर्ट अगर कहीं पे कोई खर्चा हुआ विच हैज नॉट बीन, जो यहाँ पे अभी तक नहीं लाया जा पाया, उसके लिए हम इंडिगो अथॉरिटी से बात करेंगे, क्योंकि ये चीज है जो अभी तक सिस्टम में कैप्चर नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोगों ने काफी खर्चा कर रखा है कहीं टैक्सीज वगैरह के ट्रैवल के ऊपर, तो उसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे इनसे, बिकॉज जो यहाँ पैसेंजर अंडर कॉम्प्लेक्स में आ गया उसकी जिम्मेवारी जरूर हमने कहा है बहुत सख्ताई से कि इंडिगो की पूरी होएगी टिल द टाइम, या फिर तो उनकी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद वो घर चले जाते हैं उनके बैगेज हैंडलिंग के साथ, या फिर उनकी अगर रीशेड्यूलिंग है तो उनके पूरे सारी जिम्मेवारी। अब जैसे एक बता दीजिएगा एक बार। अभी वो ट्विटर के थ्रू हम देंगे क्योंकि अभी वो नंबर मैम, जैसे यहाँ पे शिमला से मैं आया था परसों, तो वहाँ पे शिमला से आए लोग, करनाल से आए, कपूरथला से आए। जी, अब वो वहां से चल रही है, यहाँ पे आके उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। बात ये है कि वहां से आए हैं तो उनको पैसा भी लगा है टैक्सी में, तो वो तो यहाँ से लौटेंगे फिर उतना पैसा और लगेगा, बिल्कुल। तो उसको कौन बियर करेगा? अभी पैन इंडिया बेसिस पे ये सिचुएशन यहाँ पे ही नहीं आई, सारे जी भारत के सारे एयरपोर्ट पे आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिगो से सारे ही मुद्दों पे बात चल रही है। अगर इस तरह के क्लेम कोई पैसेंजर करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करें या इंडिगो को करें, तो कॉग्निजेंस उसका लिया जाएगा। वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो हायर लेवल पे ही उन चीजों का मेरे ख्याल से रिजोल्यूशन होगा। ओके। जो आपने कहा, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्यूशन अगर बता दूँ कि अगर उनकी रीशेड्यूलिंग होनी है और अगर वो यहाँ पहुँच गए हैं तो उसके लिए जरूर इंडिगो अथॉरिटीज वालों ये विश्वास दिलाया गया है कि उनके रहने का, अगर रुकने का, स्टे का तक का खर्चा वो इंडिगो वालों खर्चा लिया जाएगा, और साथ में उनकी रीशेड्यूलिंग के लिए भी पूरी विदाउट एनी फ्रिंज चार्जेस वो पूरी रीशेड्यूलिंग की जाएगी। मैम, जो ये काफी बिहेवियर रहता है पैसेंजर्स के साथ, वो जी। हमेशा देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में कई जगह पे, और मेरे ख्याल से कई एयरपोर्ट्स का आप शायद ले रहे होंगे कि कई एयरपोर्ट्स में रहा हुआ है, लेकिन मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में ज़रूर ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे CISF का स्टाफ हो, चाहे इंडिगो या दूसरी एयरलाइंस का भी स्टाफ है, इन्होंने काफ़ी पेशेंट माहौल में सबको हैंडल करने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ जो बिल्कुल फ्लेयर अप हो सकते थे, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत ही कंट्रोल तरीके से यहाँ पे हैंडल किए गए हैं। तो इस तरह का कोई भी वाकया इधर पेश नहीं आया कि जहाँ पे बिल्कुल इस तरह की नौबत बन गई हो कि बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही वोलेटाइल हो गया हो। और ये ज़रूर मैं वापस इसको एम्फेसिस करूँगी कि पैसेंजर्स के अंदर गुस्सा जायज़ है, क्योंकि कई पैसेंजर्स को जैसे बता रहे हैं कि उनकी ट्रैवल बहुत महीनों से प्लान थी एंड उनके आगे के काफ़ी ज़्यादा शायद लिंकअप प्लान्स थे, जो सारा अभी डिस्टर्ब हो गया है। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस तरीके नाल हम इंडिगो से भी कह रहे हैं, हम इस वजह से CR के स्टाफ भी जो यहाँ पे इसी वजह से हम कंट्रोल रूम खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को भरोसा शायद एयरलाइंस के स्टाफ के आंसर से नहीं हो पा रहा, वो हमारे कंट्रोल रूम में आके भी पता कर सकते हैं और हम उनको पूरा उधर विश्वास दिलाएंगे कि उनका हल होएगा। एक इम्पोर्टेंट यहाँ चीज, कितने स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे अब तक 4 दिन में? यहाँ पे कितना फ्लो था? मेरे ख्याल से यहाँ पे 33 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं परसों। ज्यादा हुई है 33 फ्लाइटें नहीं मैडम, ज्यादा हुई है 33 तो आप नहीं, कैसे कह रहे एक हैं? दिन की बात नहीं, एक हर डे हर डे, क्या है, पर 15 डे। हुई है या 13 हुई है। हमारा 50% से ज्यादा कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन पैसेंजर फ्लो क्या है कि जैसे इंडिगो का मेरा 30 फ्लाइट है पर डे में, तो उसमें से अगर 50% भी कैंसिल हो गई है तो मेरे यहाँ टोटल 12 से 13 हजार पैसेंजर फ्लो है, इनकमिंग आउटगोइंग। तो उसमें परसेंटेज में मतलब 8 से 9 हजार पैसेंजर का इम्पैक्ट तो पड़ा है।
उसमें, लेकिन ये 2 दिन पहले की थी। आज की तारीख में एवरीथिंग इज इन कंट्रोल सिचुएशन। सर कितनी कितनी फ्लाइट्स फ्लाइटें ऑपरेट आज करती cancel हैं, हुई? कितनी फ्लाइट्स इंडिगो की ऑपरेट करती हैं और 30 कितनी के करीब इंडिगो की फ्लाइट्स पर डे मेरे यहाँ से चलती हैं। आज कितनी कैंसिल हुई आज भाई कैंसिल आज आज की कैंसिलेशन आज सिर्फ 5 कैंसिल है, और जो इन्होंने पहले से ही कैंसिल कर दी हैं। आज जो शेड्यूल में थी, इन्होंने अभी क्या है, जो मैम ने बताया कि अभी ये लास्ट मोमेंट पे कैंसिल नहीं कर रहे, इन्होंने उसकी बुकिंग ही बंद कर दी है और कैपेसिटी रिड्यूस कर दी है। तो कुछ फ्लाइट इन्होंने पहले से ही कैंसिल कर दी हैं, उनके रिफंड जारी कर दिए हैं, जो भी लेना चाहता है या जो रीशेड्यूल कराना चाहता है वो भी कर दिया है। तो पैसेंजर को इनकन्वीनियंस नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इंडिगो ने कंफर्म किया है कि पूरी कैपेसिटी लेके आएंगे, लेकिन वो फेज मैनर में लेके आएंगे। तो पैसेंजरों को एक विंडो मिलती रहेगी कि उस फेज मैनर में कौन सी डेट में उनको सुटेबल डेट मिलेगी। मैडम आज रात 8 बजे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनकी तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी आगे मिस हुई हैं, तो उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? बिकॉज वो तो किसी की यूएस की फ्लाइट थी, किसी की ऑस्ट्रेलिया की थी। मेजर कंसर्न तो उनका भी है, वो इंटरनेशनल तो जो ट्रैवलर्स जो हैं। बीत चुका वो तो हो चुका। आगे आने वाले में तो इन्होंने रीशेड्यूलिंग की है, या जिसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो यहाँ से दिल्ली जाके बाई कार या बाई ऑन इसमें ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बता सकूं, यहाँ पे जैसे बात की इन्होंने इंडिगो के अलावा एयर इंडिया ने, जैसे एक्सप्रेस ने आज रिलीज निकाला है कि वो शेड्यूलिंग दूसरे एयरलाइंस के लेने को तैयार है, क्योंकि उनकी खुद की ऑपरेशंस यहाँ से चल रही हैं। तो अब दूसरे एयरलाइंस आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड, उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उनके फेयर्स भी वही, क्योंकि कैपिंग लग चुकी है तो रीजनेबल फेयर्स हैं, और वो भी अपनी सेल कम करके रीशेड्यूलिंग कस्टमर्स को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा अभी एम्फेसिस नए कस्टमर से की बजाय हमारा उन कस्टमर्स के ऊपर है, उन पैसेंजर्स के ऊपर है जिनका ट्रैवल प्लान पिछले 3 दिन में डिस्टर्ब हुआ है, या फिर आगे होने वाले जो कैंसिलेशन है उनके अंदर इफेक्ट होता है। तभी हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, सारे ही एयरलाइन से, स्पेशली इंडिगो, कि आगे की सेल टिकट, जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि हमने कई जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो अब वो रीशेड्यूलिंग के लिए अवेलेबल होगी। कल को ये ना होए कि रीशेड्यूलिंग करने के लिए वहां पे उनके पास रूम ही नहीं है आगे की फ्लाइट रीशेड्यूल करने। आज कोई फ्लाइट है यहाँ से इंडिगो की? हाँ, आज फ्लाइट है मैडम, आज रात 8 बजे तक का टाइम है इंडिगो को दिया जो रिफंड के लिए, जी। तो उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे और इंडिगो से कैसे ये सारा फीडबैक ले रहे हैं कि Refund is एटलीस्ट a- चंडीगढ़ का जो रिफंड है वो 8 बजे तक हो जाए? रिफंड इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तारीख का रिफंड हो चुका है अभी तक। 4 तारीख वाले जो कैंसिलेशन हुई थी उनका रिफंड आज तक हो चुका है या रीशेड्यूलिंग के ऊपर जा चुके हैं। हमारा ये आप सबसे अभी बात करने का ये विचार था, क्योंकि कई जगह पे कई बार लोग रिफंड ले रहे हैं और फिर वापस बुकिंग करा रहे हैं, उससे उनको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर द सेम रीशेड्यूलिंग। अगर वो रीशेड्यूल कराएंगे तो उनके पैसे कम पड़ेंगे और वो सेम बुकिंग आगे अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में ले सकते हैं। ट्रैवल एजेंट से भी तो एडवाइजरी निकाली गई है कि बुकिंग ना लें या बुकिंग सोच समझ के करवाएं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट तो Travel अपने agents- प्रॉफिट के लिए बुकिंग कर ही जा रहे हैं। नहीं, उनकी बुकिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो जो एक आगे बुकिंग करने का सिस्टम होता है जिसमें वो हम अवेलेबल टिकट्स दिखाते हैं, वही टिकट्स ही नहीं, तभी जगह सेल काउंटर ही क्लोज हो जाएगा। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ इंडिगो के लिए क्लोज हो रहा है, इट इज ऑल, सारे ही जो एजेंट्स हैं जुड़े हुए उन सबके लिए ही वो क्लोज हो गए। एविएशन मिनिस्ट्री वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच अ थिंग। आई वुड से कि ये सारे जो गाइडलाइंस हैं ये तो सारी एयरलाइंस के लिए जारी हुआ था। इट वाज मे बी द अदर वे बिकॉज इट टुक 4 days। जैसे मैंने कहा कि इट वाज द अदर वे अराउंड, कि शायद मे बी मिसकैलकुलेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एयरलाइन थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिक फेलियर। सिस्टमैटिक फेलियर अगर होता तो फिर सारी एयरलाइंस का दिक्कत होती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।